Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Pediatrics, and today I am going to explain you people regarding the formation of urine. तो इसमें क्या पता है कि यूरिन फॉर्मेशन इज a blood cleansing function. Normally about 1300 ml of the blood enters into the kidneys and excretes the unwanted substances along with the water from the blood as urine. तो नॉर्मली यूरिन आउटपुट जो होती है ना वो 1 लीटर पर डे होती है. अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो क्या होता है, एक तरह से खून को साफ करने की प्रक्रिया के दौरान जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है. और टोटल होल डे के अंदर जो है ना अराउंड 1 लीटर जो है यूरिन जो है ना ये बनता है. ठीक है ना. तो इस प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में क्या बताया गया है कि व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, so then the plasma filters. When the blood passes through the glomerular capillaries, the plasma is filtered into the Bowman capsule. This process is called as glomerular filtrate. तो फिल्ट्रेट फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल. अब जो फिल्ट्रेट जो हमें बोमेन कैप्सूल के अंदर मिला है, फिर आफ्टर फिल्ट्रेशन थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो द फिल्ट्रेट फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल passes through the tubular portion of the nephron. While passing through the tubule, many qualitatively as well as quantitative changes take place in this process, and many wanted substances like glucose, amino acids, waters and other electrolytes are reabsorbed from the renal tubule, and at the same time some unwanted substances like water, urea and phosphorus are excreted from the renal tubule. So many unwanted substances like glucose, amino acids, water, electrolytes are reabsorbed from the tubule. This process is called as tubular reabsorption. और जो unwanted substances जो renal tubule से excrete किए जाएंगे उसको कहते हैं tubular excretion या tubular secretion. Thus the urine formation includes 3 processes. इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं. नंबर 1 है glomerular filtration, number 2 is tubular reabsorption, and number 3 is tubular secretion. So first we will discuss about the glomerular filtration. It is the process by which the blood is filtered while passing through the glomerular capillaries by the filtration membrane. It is the first process of urine formation, और urine formation का first process होता है. इसमें क्या होता है, when the blood passes through the glomerular capillaries, the plasma is filtered into the Bowman's capsule. Bowman's capsule के plasma filter होगा, and all the substances of plasma are get filtered except the plasma protein की छोड़ के plasma protein को बाकी सभी के सभी पूरा plasma जो है ना filter हो जाता है. This filtered fluid is called as glomerular filtrate. जो filter होके जो भी हमें फ्लूइड जो मिलता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अब इसके मेथड्स क्या हैं, तो मेथड टू कलेक्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इसमें क्या बताया है कि समटाइम कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के अंदर अगर इसको जो है कलेक्ट किया जाए तो कैसे किया जाएगा, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि उसके अंदर एक माइक्रोपिपेट यूज़ की जाती है बाई द माइक्रो-पंचर टेक्निक. इन द टेक्निक ए माइक्रोपिपेट इज इंसर्टेड इनटू द बोमेंस कैप्सूल एंड the filtrate is जो है filtrate is ejected out, filtrate is aspirate. अब आता है GFR क्या होता है, glomerular filtration rate. इसके बारे में क्या बताया, GFR is defined as the total quantity of filtrate formed in all the nephrons of both the kidneys. कि दोनों किडनीज के जितने भी नेफ्रॉन हैं उन सब के दौरान जितनी भी क्वांटिटी जो है ना फिल्ट्रेट फॉर्म होगा इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसी को GFR कहते हैं. एंड दिस जो है GFR इज जो है ना नॉर्मल GFR इज 125 ml पर मिनट. 1 मिनट के अंदर 125 ml होता है. एंड इन होल डे इट इज़ 180 लीटर पर डे. ठीक है ना, 180 लीटर पर डे GFR जो है ना ये रहता है. अब आता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द फ्रैक्शन और पोर्शन ऑफ द रीनल प्लाज्मा विच बिकम्स द फिल्ट्रेट, जो कि फिल्ट्रेट बनता है. It is expressed in percentage and normal filtration fraction is 15 to 20%. अब प्रेशर डिटरमाइनिंग द फिल्ट्रेशन में जो है कौन से प्रेशर जो ना इन्वॉल्व रहते हैं ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें बताए गए हैं 3 तरह की जो बताए गए हैं. नंबर 1 इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, नंबर 2 इज कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुली, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल. अब फैक्टर्स रेगुलेटिंग द GFR कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जो है कौन से फैक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग बताया गया. देयर आर सम फैक्टर्स लाइक रीनल ब्लड फ्लो, रीनल का जो है ना किडनी के अंदर ब्लड फ्लो,
ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो उनके अंदर प्रेशर कितना रहता है वो भी जो जीएफआर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेस कैप्सूल। बोमेस कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स। नेक्स्ट इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल्स। नेक्स्ट इज सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर। नेक्स्ट इज surface area of filtration membrane, ठीक है, capillary membrane, and next is permeability of the capillary membrane, and some hormonal and some other factors are also involved in the regulation of the GFR. So now the tubular reabsorption, इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, tubular reabsorption. It is a process by which the water and electrolytes and some other wanted substances are gets transported from the renal tubule to the back to the blood, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि when the glomerular filtrate flows through the tubular portion of the nephron के tubular portion से जो flow करेगा, ठीक है ना, at that time both quantitatively as well as qualitatively changes occur. Large quantity of water यानी कि more than 99% of water and some electrolytes and some essential substances are reabsorbed from the tubular epithelial cells. The reabsorbed substances, जो जितने भी substances reabsorb होंगे, moves into the interstitial fluid of the renal medulla, and from there the substances move into the blood. वहाँ से जो ना वापस back to the blood में चले जाएंगे, ठीक है ना, in the peritubular capillaries. Since the substances are taken back into the blood from the renal tubule from the glomerular filtrate, the entire process is called as tubular reabsorption. इसको जो ना tubular reabsorption कहा जाता है। इसकी कौन से मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड को जो है ना, इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, इसकी भी दो टेक्निक होती हैं। नंबर 1 इज माइक्रो पंचर टेक्निक एंड नंबर 2 इज स्टोक फ्लो मेथड। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन के कौन से मैकेनिज्म। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द मोलिक्यूल्स जो है, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इज अगेंस्ट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि अपहिल मूवमेंट के अंदर जो रहेगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेटेड, ठीक है ना, फ्रॉम द एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और इसके अंदर कौन कौन से जो है ना इसमें सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं, इसमें बताया कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिक एसिड एंड कीटोन बॉडीज। नेक्स्ट इज नंबर 2 इज पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि पैसिव रीअब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, दैट इज द डाउनवर्ड जो है ना मूवमेंट इसकी बनेगी। एंड इस प्रोसेस के दौरान कोई भी एनर्जी लिबरेट नहीं होती है। और इसके थ्रू जो सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होते हैं उसमें क्या रहते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, क्लोराइड्स होते हैं, यूरिया एंड वाटर जो है ना इसके थ्रू जो है ना रीअब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट है रूट्स, कौन सी रीअब्जॉर्प्शन के रूट्स क्या बताए गए हैं। रीअब्जॉर्प्शन अकर्स बाय द टू रूट्स, दो रूट्स के थ्रू होता है। वन इज इन ट्रांससेलुलर रूट एंड अदर वन इज पैरासेलुलर रूट। ट्रांससेलुलर रूट में क्या होता है कि इन दिस रूट सब्सटेंसेस मूव थ्रू द सेल्स के थ्रू जो है ना ये मूव करेंगे। और जो है पैरासेलुलर जो है रूट में इसमें क्या बताया गया है, इन दिस रूट सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना उसके थ्रू जो है ना इसका जो है मोलिक्यूल्स की मूवमेंट रहेगी और उसके थ्रू ही जो है ना रीअब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर। एज साइट क्या बताएंगे, साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है कि कौन कौन सी साइट में होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट जो है ना पूरी जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर होता है, जिसमें कि प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले एंड डिस्टल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पूरी जो है ना रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ही जो है ना रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। अब है रेगुलेशन ऑफ द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है ना रेगुलेट कैसे इट इज रेगुलेटेड बाय द 3 फैक्टर्स। के 3 फैक्टर्स हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, नंबर 2 इज हार्मोनल फैक्टर्स और नंबर 3 इज नर्वस फैक्टर्स। हार्मोनल और नर्वस फैक्टर इसको रेगुलेट करते हैं। अब बताया गया एक पॉइंट आता है टीएम वैल्यू, दैट इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। व्हाट इज टीएम वैल्यू। तो टीएम वैल्यू इज द रेट at which the maximum amount of the substance is reabsorbed from the renal tubule
दैट इज द टीएम वैल्यू। क्या बताया कि टीएम वैल्यू इज द रेट, कि जिस रेट से जो है ना, रेट एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस आर गेट्स रीअब्जॉर्ब, जो सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होंगे उनके मैक्सिमम रेट से जो होते हैं ना, ठीक है ना, फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल, उसी को जो है ना टीएम वैल्यू बताया गया, दैट इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। नाउ द लास्ट वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है ना, ये लास्ट स्टेज होती है यूरिन फॉर्मेशन की, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूबुल, ठीक है ना। ट्यूबुलर रिजल्यूशन में था कि रीनल ट्यूबुल से वापस से जो ना ब्लड के अंदर मूवमेंट हो रही थी, और ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर है कि जो है ना कुछ सब्सटेंसेस जो कि ब्लड से रीनल ट्यूबुल के अंदर जो है सिक्रेट किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑल्सो, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूबुल, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो द यूरिन इज फॉर्म इन नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो ये यूरिन की फॉर्मेशन जो है ना नेफ्रॉन के अंदर टेक प्लेस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रेशन। So this ends the chapter urine formation. Hope you people have understood very well. Thank you.